Now I have done it. Yes, because host has to do it, so I was not able to do anything. Anyway, thank you very much for inviting me to be the guest of honor for the day, and it's really an auspicious day for us because we know that Major Dhyanchand, who was wizard of hockey, and it is his birthday today, which is celebrated as international, or we can call it a national sports day. And in all the country, in many states, in every district and every village, it is being celebrated with different functions, different occasions. Even in Delhi, the award ceremony is there, the Arjun Award and Dronacharya Award in different places. So it's really nice of you to organize this webinar today on in the memory of Major Dhyanchand. Thank you very much. Do you have to speak a little more about this, or the uh, main speaker has to start now? Since this is the National Sports Day, I will basically try to tell you that I'm from the field of Malkham, which is the ancient traditional Indian sport, which was originated in Maharashtra more than 200 years ago. But it is known as the unique apparatus which gives maximum exercise to each and every part of the body within shortest time. Though it was originated in Maharashtra, now it is popular in almost all the states of our country, including the Northeast, the Meghalaya, Manipur, Tripura, Assam, Arunachal Pradesh, and right from Kanyakumari, the Kerala, Tamil Nadu till the north, J&K, Punjab, Haryana, everywhere Malkham has been practiced. And this year we are honored that a coach from Malkham field, Yogesh Malviya from Ujjain, has been honored as Vishwamitra, and the function will be taking place within few minutes now. So Malkham is getting its popularity and acceptance from the government as well as from the people. It is the best, cost effective, and giving exercise for right from small children till the adults. Anybody of any age can learn it, can practice it. We have one Shantilal Sangvi who started learning Malkham at the age of 82, and he gave a demonstration of Malkham in the first World Championship which we conducted last year in Mumbai when he was 89 years of age. So there is no age bar. Anybody can start learning at any age and he can learn and progress, get the benefits of Malkham. It is just extension of Malkham, extension of yoga, either on the rope or on the pole. And of course, all the systems in the body, like respiratory, circulatory, digestive, which are always benefited by any kind of sports or yoga, all those benefits you receive, you get when you practice Malkham. We have got the circulatory system where there is a pump in our body, in the heart, which pumps the blood all over the body. But the main system which fights with the external attacks on the body, it's a disease resistance power which we have, the immune system which we have to develop, and that is by lymphatic system. So anytime when we do any kind of activity, these lymph nodes are activated, which fight against the battle. And in the circulation system, there is a heart which pumps the blood all over the body. But in lymphatic system, there is no pump. So there is no like cardiovascular system. So what we have to do is the exercises or yoga, which will make the fluid all over the body and it will fight with the diseases, especially in the global pandemic like corona. It is very essential that we should develop our immune system. So you may practice any game, maybe a field game like football, volleyball, hockey, athletics, or maybe indoor games like gymnastics, malkham, yoga. But all this is to develop your immune system. And
it should not be restricted only for a particular sports day, only on 29th August, but it should be a throughout the year. The schools, the primary schools, the secondary schools, the high schools, and the colleges, everywhere, sports should be practiced throughout the year. So this is what we can say the message on this National Sports Day. Thank you. Thank you, sir. Thank you for the valuable information and the scientific aspect of Malakam, which we actually did not know. Okay. So thank you for that valuable information. Thanks a lot. I take this opportunity to welcome the next eminent speaker, Ms. Meenakshi Dwivedi. She is from the Department of Physical Education, National College of Physical Education, Patiala. She has cleared the prestigious NET and SLET exams. She has represented in All India Athletics and inter-university cricket 5 times. She holds advanced diploma in aerobics and diploma in yoga. We welcome you, ma'am. Over to you. Thanks to the principal, ma'am, and the chief guest of today's webinar. I'm really grateful to be a speaker of today's webinar. So good morning, and a very strong and enthusiastic good morning to you all. On the occasion of Sports Day, Indo Public School has organized a webinar, which is a great effort in itself towards the development and awareness of sports in school and among the children. I'm really grateful and thankful to the principal of Indo Public School, to the organizer team that who organized the lovely webinar, who gave me a chance to be a speaker of today's webinar. It is it is so great in itself to be a speaker on the day of Sports Day, like to grow to make aware about our profession towards to all the audience. So this is a great opportunity you have been given to me, ma'am. Thanks for this. Okay, yeah. So the today's webinar, let me show you the slide. I'm sharing the slide. Uh, yeah, so the webinar has started 11 a.m. Yeah, let me change the slide. Yeah. So on the occasion of National Sports Day live webinar, the topic is health and wellness during COVID-19 and the importance of sports and physical activity in life. So this is the today's webinar, today's topic. One thing I want to make sure that ऑडियंस का स्पीकर के साथ या फिर स्टूडेंट्स का एक टीचर के साथ कनेक्शन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जस्ट अ सिंपल रिक्वेस्ट कि योर कम्युनिकेशन एंड द कनेक्शन विल बी विद मी थ्रू द कमेंट्स. ओके, तो व्हेनेवर आई आस्क यू या फिर जो भी मैं आपको कुछ बोलती हूँ या फिर कभी भी जब भी कुछ बोलती हूँ तो आपका उसके साथ कमेंट्स में लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी मुझे समझ में आएगा. आई विल एबल टू नो दैट हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड, हाउ मेनी ऑफ यू आर excited about the webinar. So we are starting with a comment. Write down in your comment please that you are excited about the webinar, because this webinar really brings you a lot of information about the sports. Yes, Vedanti, this webinar will definitely bring you a lot of information about unfolding truths about the physical education and the physical activities. So how many of you are excited of this webinar? Write down the excitement in your comment box. That's really, really important. Yes, Amla, you're excited? Yes. So let's start with a question. I'm starting my webinar with a question that now the image is in on your screen. Yes, Pratha? Yes, Piyush, the image is on your screen. That which type of life you feel is good? क्या लगता है आपको कौन सी लाइफ ज्यादा बेटर है आपके लिए? सैंतम, क्या लगता है आपको कौन सी वाली लाइफ ज्यादा आपके लिए बेटर है, ए वाली या फिर बी वाली?
आप लोगों के दिमाग में लग रहा होगा कि कौन सी वाली देखने में कौन सी लग रही है, क्या लगता है देखने में कौन सी बेटर लग रही है, पहली वाली दूसरी वाली? Of course, all everyone will say about the first image, क्योंकि उस इमेज में क्या दिख रहा है आपको? उस इमेज में एक्साइटमेंट दिख रही है, एनर्जी लेवल दिख रहा है, रिफ्रेशमेंट दिख रहा है, एक लवली एनवायरनमेंट दिख रहा है। दूसरी वाली इमेज में क्या दिख रहा है? एक आदमी लेटा हुआ है आराम से, बस आराम कर रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। यस प्रीतम, ओके, लेट मी आस्क यू द अनदर क्वेश्चन। ओके, लेट मी आस्क यू द अनदर क्वेश्चन। क्या लगता है आपको, हाउ डू यू फील, हाउ डू यू वांट योरसेल्फ टू लुक लाइक? कैसा दिखना चाहते हैं आप अपने आप को इन फ्यूचर? कैसा दिखना चाहते हैं आप? वेदांती, यू वांट टू बी फिट? यस यस शांतम, फिट दिखना चाहते हैं। ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जो ये बोलेगा नहीं नहीं मुझे पहली वाली इमेज ज्यादा बेटर लग रही है, मुझे दूसरी वाली इमेज तो अच्छी नहीं लग रही है। कोई भी ऐसा नहीं होगा, सारे के सारे यही बोलेंगे ऑफ कोर्स सेकंड वाली इमेज ज्यादा बेटर है। वी वांट टू लिव आवर लाइफ in a better way, we want to be a fit person, of course। इतना सब तो हमें पता है, नहीं सब आपको भी पता है। मैं जो आपको बता रही हूँ कि आपको पता नहीं है, बिल्कुल आपको पता है, बट why don't we follow it? Why don't we follow it? We always follow what we like in our life। हम वही चीज को फॉलो करते हैं जो हमें पसंद है लाइफ में, बट वी डोंट फॉलो अबाउट फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज में जो हमें पता है, जो हमें पसंद है, हम वो नहीं करते। क्या रीजन है उसके पीछे, क्या लगता है आपको? अगर आपको आइसक्रीम पसंद है, जल्दी से भाग के जाएंगे आइसक्रीम लेकर आएंगे और खा लेंगे, ओके। पिज्जा पसंद है, पिज्जा जाएंगे लेकर आएंगे और खा लेंगे, राइट। बट फिजिकल एक्टिविटी के लिए रोज सुबह कौन उठेगा? ओके, क्यों एक्सरसाइज करना, क्यों बॉडी को? यस यस, दीज आर द रीजंस दैट वी डोंट फॉलो अबाउट फिजिकल एक्सरसाइज। चलिए इसी को कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों को मैं एक चीज और बताता हूँ कि आप लोगों ने ग्रेट पर्सनालिटीज तो देखी होंगी, एक्टर्स के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। सलमान खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, या ऋतिक रोशन एशिया का द फेमस पर्सनैलिटी, या सबको उनके बारे में पता है। उनकी पर्सनैलिटी कैसी, उनकी फिजिक कैसी है? फिट, फाइन, बहुत अच्छी फिजिक। उनको देखने में कैसा लगता है? वाव। मुंह से क्या निकलता है? वाव ही निकलता है, राइट। तो ये सारी पर्सनालिटीज को मैंने तो अभी तक देखा नहीं है, या मैंने तो अक्षय कुमार मैंने तो अभी तक देखा नहीं है, तो मैं आपको उनके एग्जांपल्स बताती हूँ जिनको मैंने देखा है। वो है ट्रू एग्जांपल्स आज के लिए। नंबर वन इज या दिस इज सरदारी मानकौर, या सरदारी मानकौर। पीटी उषा इज ऑल्सो देयर, बट आज जो मैं आपको एग्जांपल्स बताने वाली हूँ, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ टुडेज वेबिनार। मानकौर, ठीक है। तो लाइक शी इज एन इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट, शी इज एन इंडियन एथलीट। इनके नाम पर काफी सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, काफी सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, और उनकी एज पता है कितनी है? 105 years। I would say young, I would not say old, she is 105 years young। just imagine। आप लोग को क्या लगता है कि इंडिया की एवरेज एज कितनी है? हाउ डू फील, क्या लगता है आपको? राइट इन डाउन कमेंट बॉक्स। आप लोग को क्या लगता है इंडिया की एवरेज एज कितनी है? क्या लगता है? 80 years शांतम? प्रिंसिपल मैम आपको भी कमेंट करना पड़ेगा। क्या लगता है आपको एवरेज एज कितनी है? कितनी है एवरेज? 60 years चंद्रेश? यस, द एवरेज एज ऑफ इंडिया इज 60 to 70 years। जस्ट इमेजिन 60 to 70 years की एवरेज एज है, एंड दिस लेडी इज द लाइव एग्जांपल ऑफ who beat her age, and she is 105 years and she is holding a record in athletics, okay। Another example, one more example is there, Mr. Fauja Singh। Mr. Fauja Singh is a marathon runner। marathon, मैं आपको डिस्टेंस बताऊं तो the distance is 42 kilometer, exactly 42.195 kilometer, the distance of a marathon। Just imagine, he is the man who runs a full marathon at this age, and the age is 109 years young। Just imagine, 109 years young। We even can't imagine about that age, that हम वहां तक जिंदा रहेंगे कि भी नहीं रहेंगे, but he is the man, he is the live example who has beaten his age about this। and again इनके नाम पर भी काफी सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ट्रू एग्जाम्पल्स आज के टाइम पे, जिन्होंने ये बताया है कि फिजिकल एक्सरसाइज से, फिजिकल एक्टिविटीज से,
स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन से आप अपनी एज को, अपने हेल्थ इश्यूज को, और अपनी जितनी भी आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है, इश्यूज होते हैं लाइफ में, मेंटल प्रेशर, ये जितनी भी चीजें होती है, सबको आप बीट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस। ओके, अब ये सारी चीजें अगेन आप बोलेंगे मैम हमें भी पता है, मैं आपको कितने ही सारे मोटिवेशनल इमेजेस बता सकती हूँ, कितने ही मोटिवेशनल वीडियोस मैं आपको दिखा सकती हूँ, आप लोग मोटिवेट तो हो जाएंगे, बट कुछ मिनट के लिए मोटिवेट होंगे, दोबारा से अगले दिन से वही शुरू, लेजीनेस, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल एंड आपका बेड, दोबारा से वही शुरू। तो क्या रीजन है? अगेन द क्वेश्चन इज व्हाई डोंट वी फील लाइक, मीन हम वो क्यों नहीं करते जो हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज के लिए फील करते हैं? मे बी आंसर ये हो सकता है दैट वी हैव नॉट रियलाइज्ड, हमें अभी तक ये रियलाइज ही नहीं हुआ है कि इफ वी डोंट एक्सरसाइज वी विल डाई सून। वी हैव नॉट रियलाइज्ड इट, हमें अभी तक यही नहीं पता है कि अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज को कंटिन्यू नहीं करेंगे तो हो सकता है क्या, पक्का होगा कि हम जल्दी मर जाएंगे। ये दिस इज अ बिटर ट्रुथ, या दिस इज अ बिटर ट्रुथ, and maybe this could be the another reason that we have not realized yet that this is as important as water and food. Let me tell you, physical exercise and physical activity is very 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 important as a food and a water. जितना आपकी बॉडी के लिए पानी इंपॉर्टेंट है और फूड इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज आपकी बॉडी के लिए। चलिए कोई बात नहीं, इस एग्जाम्पल से भी आप आई डोंट थिंक कि इस एग्जाम्पल से भी आप कंफर्टेबल फील करेंगे, बिकॉज ये भी एग्जाम्पल आपको ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। लेट बी कंटिन्यू, हम थोड़ा सा और इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। आज के टाइम पर इंडिया में स्पोर्ट्स का इतना ज्यादा क्रेज बढ़ चुका है कि आज के टाइम पे किसी को भी बोलो तो स्पोर्ट्स के बारे में पूरी अवेयरनेस है। अवेयरनेस किसकी वजह से? थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट, to the physical educationist and to the sports lovers, जिनकी वजह से लास्ट 5 years में इंडिया का सिनेरियो स्पोर्ट्स के थ्रू पूरा चेंज हो चुका है। आप लोगों ने ये जो आइकन्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये आइकन्स आप लोग अच्छे से अवेयर होंगे इस चीज के बारे में। नंबर 1 इज खेलो इंडिया। It was introduced by Ministry of Youth Affairs and Sports. एक खेलो इंडिया स्कूल गेम्स भी होता है और खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी होता है। अब आप ये देखिए कि एक टाइम था जब हम लोगों को ये बताते थे कि यार बच्चा जब एज कम होती है उस टाइम पे उसको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसकी हाइट रुक जाती है या फिर उसकी बोन्स वगैरह, जो भी एक मिसकंसेप्शन था। बट आज के टाइम पे हमको पता है कि जो भी डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ एंड वो डेवलपमेंट होता है, वो एकदम बिगनिंग से होना बहुत जरूरी है, शुरुआत से ही उस डेवलपमेंट को होना बहुत जरूरी है। इसी के लिए आज के टाइम पे स्पोर्ट्स के लिए हर एक एज ग्रुप में हर एक फैसिलिटी है, हर एक एज ग्रुप में एक पर्टिकुलरली एक बोल सकते हैं अपॉर्चुनिटी है, जिस अपॉर्चुनिटी को लेकर एक छोटा सा बच्चा भी एक स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर सकता है और एक अच्छा अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकता है बिकॉज ऑफ दीज एग्जाम्पल्स। प्रो कबड्डी के बारे में आप लोगों ने पक्का सुना होगा। प्रो कबड्डी एक ऐसा स्पोर्ट्स हुआ करता था जिसके बारे में मतलब ये मान लो कि आधे लोगों को तो पसंद भी नहीं था, आधे लोग इसको देखना पसंद नहीं करते थे, बोरिंग मानते थे, और पूरे वर्ल्ड में तो ये खेला ही नहीं जाता है। बट आज के टाइम पे the interest towards kabaddi, and the energy level towards kabaddi, it's increasing. It's not increasing on the national level, it is increasing on the international level. This is the true spirit of the sports in India. Next is Premier Badminton League, PBL. Badminton is also increasing day by day. The interest, the energy is also increasing day by day towards the badminton. Next is Namrata, IPL के बारे में तो बताना मतलब ये होगा कि किसी ऐसी चीज के बारे में बताना जो आपको नहीं पता हो। आईपीएल के बारे में सभी लोग जानते हैं। आईपीएल स्टार्ट हुआ, आईपीएल ने एक क्रिकेट को एक ऐसा मुकाम दिया, एक ऐसी हाइट दी जहां पर सभी को, एक छोटे से छोटे बच्चे को भी आईपीएल के बारे में पता होता है। क्रिकेट लवर्स, वी ऑल आर द क्रिकेट लवर्स। और क्रिकेट लवर्स होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, एक क्रिकेट लवर्स का जो एग्जाम्पल देना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स, ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं बट दीज आर द मेन एग्जाम्पल्स जिन्होंने
5 साल में, 5 इयर्स में इंडिया का स्पोर्ट्स के थ्रू सिनेरियो ही पूरा चेंज कर दिया है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, इंडिया रैंक 3 इन रेसलिंग। सी द चेंजेस। एक टाइम पे इंडिया कहीं भी नहीं दिखता था इन रेसलिंग। नाउ आज के टाइम पे इंडिया इज रैंकिंग 3rd in wrestling. That's really a great achievement for India. The next example is India ranking at top in shooting. Now this is again a great example. मतलब आज के टाइम पे इंडिया शूटिंग में पहले नंबर पे है। जस्ट इमेजिन कि इंडिया एक टॉप पर है पूरे वर्ल्ड में। ये अमेजिंग है, बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क ऑफ द स्पोर्ट्स पर्संस, बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, एंड बिकॉज ऑफ वी कि हमने इनको अप्रिशिएट किया, इनको एक वो किया। और आज के टाइम पे ये चीजें चेंज हो रही है, एनवायरमेंट चेंज हो रहा है टुवर्ड्स द स्पोर्ट्स। ये सारी की सारी चीजें हैं। इसके बाद अभी आपको एटलीस्ट ये तो समझ में आ चुका है कि आज के टाइम पर सभी को स्पोर्ट्स के बारे में और फिजिकल एक्सरसाइजेस के बारे में काफी हद तक अवेयरनेस हो चुकी है। एंड बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द स्कूल्स, लाइक इंडो पब्लिक स्कूल हैज ऑर्गेनाइज्ड दिस वेबिनार on the occasion of sports day, इनके एफर्ट्स के थ्रू ही जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन तक हमारी जो बातें हैं, जो स्पोर्ट्स के थ्रू जो अवेयरनेस है वो और पहुंचती है, और ये चीजें क्लियर हो पाती है कि रियल में स्पोर्ट्स क्या है और रियल में हमें कितनी मिसकंसेप्शंस है इस स्पोर्ट्स के थ्रू। चलिए अब मैं थोड़ा सा एजुकेशन की बात करती हूँ। थोड़ा सा, ये तो सारे के एग्जांपल्स हैं, अब थोड़ा सा एजुकेशन की बात करते हैं कि क्योंकि हमारे यहाँ पे वेबिनार में काफी स्टूडेंट्स भी हैं, काफी स्कूल स्टूडेंट्स भी हैं, काफी प्रोफेसर्स भी आए हुए हैं, काफी एमिनेंट पर्सनैलिटीज भी आई हैं, तो हर एक के हिसाब से थोड़ा सा लेके चलते हैं। तो अभी तक हमारी एग्जाम्पल्स की बात हुआ, अब हम लोग बात है थोड़ी सी एजुकेशन की बात कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन हेल्थ, वेलनेस एंड फिटनेस, दिस इज द मेजर मिसकंसेप्शंस। सबको लगता है कि हेल्थ, वेलनेस और फिटनेस एक ही है। क्या लगता है आपको, एक है कि नहीं है? क्या लगता है? राइट डाउन इन योर कमेंट बॉक्स, इज इट सो? अगर आप रियल में स्पोर्ट्स पर्सन हैं या फिर रियल में स्पोर्ट्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो आपको पक्का पता होगा दिस इज नॉट सेम, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल यूज दीज 3 वर्ड्स टुगेदर, लाइक हेल्थ भी एक ही है, फिटनेस भी एक ही है, चला ही जाए, और वेलनेस भी सेम ही है। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। लेट मी क्लियर यू टुडे दैट health is like what we feel in our body, that we are a healthy body, we are free from the diseases, we don't have any disease। अगर हमें mentally या फिर physically, yes, हमें mentally and physically अगर कोई भी problem नहीं है, if we don't have any illness in our mental ability, in our physical ability, that means we are a healthy person। हम लोग ये बता सकते हैं that we are a healthy person। बिल्कुल सही है, हमारा state of mind, state of body, it is in a good condition, that means we are a healthy body। Second is the fitness, and the fitness is exactly means the physical fitness, and physical fitness means you are doing a physical exercise। If you are doing a physical exercise on a regular basis, that means you are physically fit। Otherwise, if you don't do physical exercise on a daily basis but you are healthy, you don't have any problem in your mental ability, if you don't have any problem in your physical ability, that means you are a healthy person। But with the help of a healthy person, if you do a exercise on the daily basis, that means you will be called as a physical fit personality। So जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में कि कौन सा आपको फिट लग रहा है, तो दूसरा एग्जांपल जो था वो था आपका फिटनेस का। दैट मींस फिजिकल फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू बी अ फिट बॉडी। ओके, फिटनेस के लिए ना एक चीज और इंक्रीज हो जाती है। वी ऑलवेज एनकरेज पीपल टू डू फिजिकल एक्सरसाइज, टू डू फिजिकल एक्सरसाइज। उसके पीछे रीजन क्या है? लेट मी शो यू द एग्जांपल। ओके, वहां पर आपकी एफिशिएंसी, आपकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। ओके, लेट मी गिव यू द एग्जांपल। आप जब भी आपका वॉकिंग होती है ना, जस्ट सिंपल से एग्जांपल, यस मिस्टर नीलेश, सिंपल से एग्जांपल है हाउ यू वॉक। ओके, जस्ट इमेजिन हाउ यू वॉक विदाउट डूइंग physical exercises, you simply walk, and after doing an exercise, just see the way you walk,
you will definitely work smartly. This is my guarantee to you that if you do physical exercise on a daily basis, then the how you work is an example. You will feel like that I am working smartly, I'm smiling smartly, I'm carrying my personality smartly. This is the example of fitness. Yeah, this is the simple example. Okay, now next is wellness. Wellness means this is the overall balance of your physical and social and spiritual, emotional, intellectual, environmental, and occupational well-being. It means that if you are overall healthy means you are mentally healthy, you are emotionally healthy, you are healthy by the society also. सोसाइटी में भी आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है. Intellectually you are healthy, like your intellectual ability is very strong. Environmentally you are environmentally also healthy, and occupationally you are also healthy. That means the overall healthiness, and with including the physical fitness, this means a well-being. So you have come about the difference between all these three. Health means only about your health, about your physical body and the mental body, without the diseases, but no exercise. This is health. Number two is a fitness, which means you are doing a physical exercise which will increase your efficiency, which is increasing your effectiveness towards any work. Okay. Now, next is wellness. It means overall healthiness of your body as well as the physical fitness. So these are the three differences which you should know about if you are really interested to do the physical exercise, because these misconceptions will definitely hinder your education and your knowledge, right? Okay, next question from you. Okay, this is the next question from you. uh, is there any difference between physical exercise and physical activity? क्या लगता है आपको? Is there any difference between physical exercise and physical activity? Yeah, जिसको जो physical वाले, they will ask, yeah, they will give the answer. Yeah, definitely. Yes, yes. और जिनको थोड़ा सा doubt है, okay, like my dad. Okay, let me give you an example of my dad. मेरे पापा का example देती हूँ, क्योंकि या मैं उनका example देती हूँ आपको. शायद वो मुझे देख भी रहे होंगे. तो मैं आपको बताती हूँ. एक बार क्या हुआ कि मेरे पापा आए, घर में आए, तो मैंने उनको बोला कि पापा आपकी एज बढ़ रही है, तो एक काम करिए, आप थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करना स्टार्ट करो, क्योंकि जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है तो थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज करना अच्छा होता है. मैंने उनको थोड़ा सा कन्विंस करने की कोशिश किया, ये थोड़ा सा कन्विंस करने की कोशिश किया. तो उन्होंने पता है क्या आंसर दिया? उन्होंने बोला मैं होटल में जॉब करता हूँ. लाइक ऐसा एकदम पूरा एकदम ऐसा रुतबे वाला आंसर दिया. मैं होटल में जॉब करता हूँ, मेरे दिन भर इधर से उधर चलता रहता हूँ, ऊपर से स्टेयर्स अप डाउन करता रहता हूँ, मैं फिजिकल एक्सरसाइज हो तो रही है मेरी वहां पे. दिस वाज द आंसर. कितने लोग ये आंसर देते हैं? जल्दी बताओ, कितने लोग ये आंसर देते हैं? अरे मैं दिन भर काम करता हूँ, मैं दिन भर ये करता हूँ, मैं दिन भर वो करता हूँ. इज दिस एन आंसर? इज दिस एन आंसर? मैं उस टाइम पे तो चुप हुई. मैं बाद में बोला, पापा दिस इज नॉट अ फिजिकल exercise, this is physical activity. Whatever you are doing in your work, whatever you are doing on a daily basis, this is not physical exercise, this is physical activity. जो भी एक्टिविटी आप अपनी बॉडी के साथ कर रहे हो, this is physical activity. आप पानी का ग्लास उठा भी रहे हो ना, पानी का ग्लास उठा भी रहे हो, this is also physical activity. अभी I'm speaking, this is also physical activity, but this is not physical exercise. Physical exercise कब होगी? When you do anything in a systematic order, when you do the exercise, when you do that physical activity in a systematic order, when you do a physical activity in a sequential order, और उसका ना एक पर्पस होता है. फिजिकल एक्सरसाइज का एक पर्पस होता है दैट या तो आपको वेट रिड्यूस करना है, या तो आपको वेट बढ़ाना है, या फिर आपको एक स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है, या फिर किसी कंपटीशन के लिए आपको प्रिपरेशन करना है. दैट मींस ऑलवेज एंड ऑलवेज फिजिकल एक्सरसाइज का एक पर्पस होता है. आप में से कितने लोग हैं हु गो टू जिम? कौन कौन जिम जाता है? कितने लोग हैं कि इस लॉकडाउन में भी इतना सा स्पेस है, बट फिर भी पुशअप्स ले रहे हैं, सिटअप्स ले रहे हैं? मतलब दे आर अवेयर अबाउट द हेल्थ. उन्होंने उस टाइम पर भी एक्सरसाइज करना नहीं छोड़ा.
these are the things. बिल्कुल सही अब्दुल. Yes, I appreciate those, क्योंकि मैं तो नहीं हो पाया, मेरे से नहीं हो पाया, but I really appreciate those जिन्होंने इस लॉकडाउन में भी अपनी फिजिकल फिटनेस का साथ नहीं छोड़ा, जिन्होंने कंटिन्यू ये चीजें करी हैं. So that means these are the examples which will give the example of physical exercise. Okay, फिजिकल एक्टिविटी आपको समझ में आया? तो आज के बाद आप ये नहीं बोलेंगे कि मैं काम कर तो रहा हूं तो ये मेरी फिजिकल एक्सरसाइज है. नो, वो कभी भी आपको आपका पर्पस को फुलफिल करने के लिए हेल्प नहीं करेगा. आपको फिजिकल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जो भी एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में होगी, एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में होगी. राइट? ओके, लेट्स गो फर्दर. अभी थोड़ा सा, यस ऋतुजा, अभी थोड़ा सा कोरोना की बात करें क्या? यस राहुल, अभी थोड़ा सा कोरोना की बात करते हैं. आजकल तो ऐसा हो गया कि कोरोना के बिना कोई बात ही नहीं होती, क्योंकि सीधी सी बात है, कोई भी बात कर लो तो वहां पे कोरोना तो आएगा ही आएगा, क्योंकि भाई कोरोना आज के टाइम पर लाइक बोल सकते हैं कि एक ऐसी चीज बन चुका है कि हमारे मन में, हमारे दिमाग में, हमारी हर जगह कोरोना ये चीज है कि हाउ वी विल ओवरकम फ्रॉम दिस सिचुएशन. पूरे डॉक्टर्स, पूरे साइंटिस्ट इस प्रॉब्लम को आंसर निकालने के लिए लगे हुए हैं, बट वी आर नॉट गेटिंग द आंसर. बट कैन वी मेंटेन दिस? ओके, यहाँ पे ना दो रीजंस होते हैं. दो, कोई भी प्रॉब्लम होती है आपके साथ, कोई भी बीमारी होती है आपको, कोई भी डिसीज होती है आपको, देयर आर टू थिंग्स. नंबर वन इज प्रिकॉशंस एंड नंबर टू इज ट्रीटमेंट. आर यू गेटिंग दिस? जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं. नंबर वन इज प्रिकॉशंस एंड नंबर टू इज ट्रीटमेंट. प्रिकॉशन ज्यादा बेटर है या फिर ट्रीटमेंट ज्यादा बेटर है? कम ऑन, प्रिकॉशन ज्यादा बेटर है कि ट्रीटमेंट? पी और टी, ज्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है टाइम लगता है. पी और टी, प्रिकॉशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ट्रीटमेंट? ऑफ कोर्स. यस शोएब सर, यस आकाश. तो प्रिकॉशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है. ओके, अब प्रिकॉशंस हम लोग कैसे कैसे ले सकते हैं, प्रिकॉशंस कैसे ले सकते हैं? तो आज का जो वेबिनार है वो एक्चुअली में इसी चीज के ऊपर है. मैं आपको बताता हूँ हम लोग कैसे कैसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं. उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी, यस वेदांती, ये बताना चाहूंगी कि कोरोना का आपकी बॉडी के ऊपर किस तरीके से इफेक्ट होता है. एक चीज और मुझे आपको पता है, यस, एक चीज और मेरे को आपको पता है कि आपको सबको पता होगा कि कोरोना क्या है और कोरोना आपकी बॉडी पे कहाँ कहाँ इफेक्ट करता है, किस किस प्रकार से इफेक्ट करता है, सबको पता है. क्योंकि सब लोग जब भी किसी को मोबाइल मिलाते हैं, नंबर मिलाते हैं, तो एक प्यारी सी मैम आके बोलती हैं कि 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ साबुन से 10 सेकंड के लिए धोएं. लाइक हम सुन के थक चुके हैं, बट वो मैम बोलते बोलते नहीं हुई है, थकी है. और हमें अब सबको पता चल चुका है कि अच्छा यही चीजें हैं, सबको पता है उस चीज के बारे में. तो अगेन मैं थोड़ा सा आपका जो भी मेमोरी है उसको रिकॉल करवाती हूँ. इट इन्वेड्स द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. ओके, आप जो कोरोना है सबसे पहले आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है. अब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया? योर लाइक जहां पर भी आपका ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन CO2 एक्सचेंज होता है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन जो एक एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. जो भी एक एरिया होता है, दैट द लंग्स. ओके, ह्यूमन लंग्स के अंदर स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं. द नेम इज एल्वियोलाई. ओके, एल्वियोलाई करके स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिनको कहा जाता है एयर सेक्स कहा जाता है. ओके, दीज आर द स्मॉल पार्टिकल्स जिनके अंदर से ऑक्सीजन एंड O2 एंड CO2 एक्सचेंज होती है. आपको पता है इनहेलेशन में वी टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज CO2. तो ये जो CO2 और O2 है, ये जो एक्सचेंज होती है एग्जैक्टली एल्वियोलाई में, जो कि कहां पर होते हैं? इन योर ह्यूमन लंग्स. ओके, उनके अंदर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं. रिसेप्टर्स ही उस इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? रिसीव करते हैं, जिसकी वजह से ही ये चीज एक्सचेंज हो पाती है. कोरोना करता क्या है? ये जो एक वायरस है, दिस वायरस उस रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो जाता है, चिपक जाता है, बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से जहां से एक्सचेंज होता है वो चीजें ब्लॉक हो जाती हैं. जब वो चीजें ब्लॉक हो जाएंगी तो अब आपको पता है कि ऑक्सीजन और CO2 का जो एक्सचेंज है, क्या वो हो पाएगा?
नहीं हो पाएगा। तो दीज आर द सिंपल एग्जाम्पल जिसकी वजह से हमें ऑक्सीजन लेने में और CO2 रिलीज करने में दिक्कत होती है, इनहेलेशन और एक्सलेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। दिस इज द एग्जाम्पल कि किसकी वजह से होता है। तो एल्वियोलाई में जो रिसेप्टर्स है वहां पर अटैच हो जाता है दिस वायरस, जिसकी वजह से वो जो ब्लॉक्स है, वो जो होल्स है वो ब्लॉक हो जाते हैं, राइट। these are the diagram of the lung and ये अंदर का ये अंदर का एक डायग्राम है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं these are the bronchioles because this is a trachea। ट्रैकिया के बाद ब्रोंकस आता है, ब्रोंकस के बाद वो ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होता है एंड ब्रोंक्यूल्स के बाद अगेन द स्मॉल एयर सेक्स, जहां पर एयर के स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, एल्वियोलाई, एंड एल्वियोलाई के अंदर कैपिलरीज होती हैं जहां से वो ऑक्सीजन और ब्लड एक्सचेंज होता है। यहां पर वो ब्लॉक हो जाता है जिसकी वजह से वो फिर चेंज नहीं हो पाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लंग के बाद जो चीज अफेक्ट होती है वो है लंग्स। अब आपका सॉरी आफ्टर लंग इज द हार्ट। अब आप समझ रहे हैं कि अगर कोरोना ने इफेक्ट किया है तो आपका जो एयर सेक्स है एल्वियोलाई वो ब्लॉक हो चुका है। अब वो अगर ब्लॉक हो गया तो अब आप ये मानिए कि जो आपका ब्लड है इम्प्योर होना शुरू हो चुका है। इफ योर ब्लड इज गेटिंग इम्प्योर दैट मीन्स योर हार्ट इज इन डेंजर। ओके, ये स्ट्रक्चर तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बट हाँ इस स्ट्रक्चर के बारे में आपको आइडिया होना बहुत जरूरी है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे यहाँ पे शेयर करूंगी, क्योंकि अगर हार्ट की बात करते हैं तो सीधी सी बात है ब्लड की बात की जाती है, ब्लड की वेसल्स की बात की जाती है। ब्लड की वेसल्स मीन्स आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज की बात की जाती है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जब वो जो वायरस है वो एल्वियोलाई में ब्लॉक हो चुका है, ब्लॉक होने के बाद जो ऑक्सीजन आपके ब्लड में आनी थी वो तो आ नहीं रही है, जिसकी वजह से होगा क्या, वो वायरस आपके ब्लड में एंटर होना शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से आपकी जो ब्लड की वेसल्स है, ब्लड की वेसल्स जिसके अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूट होता है, ट्रांसमिशन होता है, बिल्कुल सही है, वो आपका रुकना शुरू हो जाएगा, ब्लड की क्लॉटिंग होना शुरू हो जाएगी। और जब ब्लड की क्लॉटिंग होना शुरू हो जाएगी तो आपको पता है क्या होगा, ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर को एक नॉर्मल रखने के लिए ब्लड फ्लो होना बहुत जरूरी है। और ब्लड फ्लो होने के लिए ब्लड क्लॉट नहीं होना चाहिए, ब्लड रुकना नहीं चाहिए। बट बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाएगा और ब्रेन तक ब्लड प्रॉपरली नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से ब्रेन, योर हार्ट एंड योर लंग्स अफेक्ट्स और उनका फंक्शन काम करना बंद कर देगा। Thus, virus attacking the blood vessels could be one reason why patients with a blood pressure and diabetes are higher at risk. एक चीज और आपको इंफॉर्मेशन मिली होगी कि जितने भी पेशेंट्स हैं, जो लोग ऑलरेडी ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, या फिर ऐसे पेशेंट जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, ओल्ड एज के पीपल्स, उनके लिए कोरोना बहुत ज्यादा डेंजर है। इसका मतलब क्या है कि बिकॉज ऑफ दीज रीजन, क्योंकि ऑलरेडी वो अफेक्टेड है, अगर उनको कोरोना से थोड़ा सा भी अगर वो कांटेक्ट में आए तो उनकी बॉडी के ऊपर सबसे जल्दी असर होगा। एंड दीज आर द इफेक्ट्स जो उनकी बॉडी पर इफेक्ट क्रिएट करेगा। ओके, नेक्स्ट इज आफ्टर द हार्ट, नेक्स्ट इज किडनी। किडनी के ऊपर सबसे, उसके बाद किडनी है जिसके ऊपर अफेक्ट होता है। ओके, ज्यादा डिटेल में हम लोग बात नहीं करेंगे, सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि किडनी का मेन फंक्शन क्या है, क्या लगता है आपको? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ किडनी? अभी हम लोगों ने बात किया, द मेन फंक्शन ऑफ लंग्स इज टू ट्रांसपोर्ट एंड टू गिव द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 which will help in inspiration and expression. Number 2 is the heart. Heart का काम होता है to transport the blood to all the parts of the body. Third is the kidney. क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको कि किडनी का काम क्या होता है? फिल्ट्रेशन। वेदांती, बेस्ट, गुड वन, फिल्ट्रेशन। और क्या बोल सकते हैं? फिल्ट्रेशन को एक और चीज बोल सकते हैं, कम ऑन, एक और चीज बोल सकते हैं फिल्ट्रेशन को। क्या करता है वो आपकी बॉडी में? कुछ कर रहा है, यस, कुछ आपकी बॉडी में कुछ कर रहा है। क्या कर रहा है? प्यूरिफाई कर रहा है, बिल्कुल सही आमला। योर बॉडी इज गेटिंग प्यूरिफाई आकाश, विच मीन्स आपकी बॉडी के अंदर से जो भी हार्मफुल चीजें हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, वो एक्सक्रिएट किया जा रहा है। बिल्कुल सही, आर गेटिंग दिस।
किडनी का सबसे मेन फंक्शन होता है कि आपकी बॉडी में से जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल है, एक्स्ट्रा हार्मफुल मटेरियल है, यूरिया है या फिर हार्मफुल टॉक्सिक एजेंट्स हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, वो सारे क्या करते हैं, यूरिन के थ्रू एक्सक्रिएट कर देता है आपकी बॉडी से. दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ किडनी. जस्ट इमेजिन कोरोना अगर आपकी बॉडी को के ह्यूमन लंग्स को इफेक्ट करेगा, आपकी बॉडी के हार्ट को इफेक्ट करेगा, तो उसका तीसरा इफेक्ट होगा आपके किडनी के ऊपर. और जब किडनी आपकी अफेक्टेड हो गई तो ये मान लीजिए दिस इज द टाइम ऑफ द डेथ. यहाँ पर आपकी डेथ लाइक दिस इज द लाइक कंफर्मेशन, क्योंकि आपकी बॉडी से जो हार्मफुल वेस्टेज है वो एक्सक्रिएट ही नहीं हो रहे, वो सारे के सारे आपकी बॉडी में इकट्ठा हो रहे हैं और जिसकी वजह से जो हार्मफुल इफेक्ट आपकी बॉडी का वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है. एंड दिस इज द मेन रीजन ऑफ द डेथ ऑफ द पेशेंट. राइट, ओके. ये तो हो गया आपकी फिजिकल एबिलिटी की बात. दैट मीन्स द आंसर इज योर इम्यूनिटी सिस्टम इज इन डेंजर. बार बार ये चीजें बोलते ना कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ. इफ यू वांट टू फाइट विद कोरोना देन दैट मीन्स यू हैव टू इंक्रीज योर इम्यूनिटी. यू हैव टू इंक्रीज योर इम्यूनिटी. पीयूष, ओके. अब इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए आपको चीजें समझ में आ गई है. you have to work for your lungs, you have to work for your heart, you have to work for your kidney. आपको इन तीन चीजें जो आपके पास बोल सकते हैं ब्रह्मास्त्र या ब्रह्मास्त्र जो है आपके पास, तीन ब्रह्मास्त्र लोगों के पास एक ही होता है. लोगों के पास क्या, अर्जुन के पास और या उनके पास एक एक ब्रह्मास्त्र. हमारे पास तीन तीन ब्रह्मास्त्र है. हमारी किडनी, लंग्स और हार्ट तीन ब्रह्मास्त्र है. इनको प्रोटेक्ट करना हमारा काम है, किसी और का काम नहीं है. तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए यू हैव टू इंप्रूव द 3 सिस्टम्स ऑफ योर बॉडी. आप में से कितने लोग हैं कि आपकी मम्मी रोज सुबह सुबह आपको काढ़ा बना के पिलाती है? अभी आई एम इन हॉस्टल बट जब मैं अपने घर में थी 3 months आई वाज इन माय होम. फर्स्ट टाइम आई वाज इन माय होम फॉर 3 months. दैट्स रियली ग्रेट टू मी. या यस प्रीतम, कितने लोग आपकी मम्मी लोग रोज सुबह सुबह काढ़ा बना के पिलाती हैं आपको? या बिल्कुल काढ़ा बना के मेरी मम्मी रोज काढ़ा बना के पिलाती थी, क्योंकि उन्हें लगता था, यस विशाल, कि इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा. और ये सही बात है. जब उन्हें पता है तो हमें क्यों नहीं पता है? वो तो चलो उनके पास उनसे जितना हो सकता है वो उन्होंने उतना काम किया. उन्होंने हमें काढ़ा बना के पिलाया, स्ट्रॉन्ग टी बना के पिलाई, वो उनसे हो सकता था. हमसे क्या हो सकता है? हमसे एटलीस्ट फिजिकल एक्सरसाइज तो हो ही सकती है ना. अपनी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है उसको हम अच्छा तो रख सकते हैं ना. तो दिस इज द एग्जांपल दैट यू हैव टू इंक्रीज योर इम्यूनिटी सिस्टम. राइट, ओके. ये तो हो गया आपकी फिजिकल बॉडी की बात. एक और बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर साइकोलॉजी. जस्ट इमेजिन इफ यू आर अ फिजिकली गुड लुकिंग पर्सनैलिटी, you are a physically good looking personality but you're mentally ill. It will affect the great audience. No. क्या आप अच्छी पर्सनैलिटी के साथ ज्यादा लोगों तक इन्फ्लुएंस कर पाएंगे? अच्छा, आइडल कौन होते हैं? आप लोगों ने अक्षय कुमार को देखा है? अक्षय कुमार, जब भी अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंडियन पर्सनैलिटीज जो स्क्रीन पर आते ही, ये पीयूष, जो स्क्रीन पर आते ही अविनाश, लगता है कि यार वाओ, इनकी बात मानने का मन करता है. इसका मतलब क्या है? इन्फ्लुएंस होने का मन करता है उनकी पर्सनैलिटी के साथ, बिकॉज वो मेंटली भी हेल्दी है और इमोशनली भी हेल्दी है, उनकी फिजिकल बॉडी भी हेल्दी है, तो उनकी बात मानने का मन करता है. दीज आर द ग्रेट एग्जाम्पल. MS धोनी इज द ग्रेट एग्जाम्पल. बिल्कुल सही है. दीज ऑल आर द ग्रेट एग्जाम्पल्स. इसका मतलब है कि आपकी बॉडी चाहे कितनी भी स्ट्रांग हो, बट अगर आप फिजिकली हेल्दी नहीं है, मेंटली हेल्दी नहीं है, तो वो आपकी कभी भी बॉडी परफेक्ट काम नहीं करेगी. ओके, तो हम लोग ये जो कोरोना है आपकी मेंटल एबिलिटी को कैसे अफेक्ट करता है? सबसे ज्यादा मेंटल एबिलिटी को इफेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स के थ्रू भी ये चीज देखी गई है. ये सजद ग्रेट कली. या स्टैटिस्टिक्स के थ्रू भी ये चीज देखी गई है. इफ योर स्ट्रेस लेवल इज हाई, अगर आपका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है तो भी आपको कोरोना बहुत जल्दी अफेक्ट करता है.
क्योंकि कोरोना केवल बॉडी से ही अफेक्ट नहीं करता, आपके मेंटल एबिलिटी से भी अफेक्ट करता है. इफ यू आर इज, बिल्कुल सही है अविनाश, दैट if you are having these problems, like if you are having a problem of seizures, if you are having a problem of strokes, if you are having a problem of oxygen starvation, meningitis, encephalitis, these are the problems of your mental abilities. अगर आपको ये सारी की सारी प्रॉब्लम है, आदिल अगर सिंपल सी बात करें, ये अगर एग्जांपल्स आपको नहीं पता तो सिंपल आपको स्ट्रेस का एग्जांपल पता होगा. ओके, अगर आपको स्ट्रेस लेवल आपका हाई है तो भी आपको, दैट मींस यू आर नॉट मेंटली इल, सॉरी यू आर नॉट मेंटली हेल्दी. मैंने अब आपको एक चीज बताया था, हेल्दी की डेफिनेशन आपको बताई थी, राइट? हेल्दी की डेफिनेशन क्या होती है? आपकी फिजिकल बॉडी भी हेल्दी है विदाउट इल, विदाउट हैविंग एनी प्रॉब्लम, एंड योर मेंटल एबिलिटी इज ऑल्सो हेल्दी, इट इज नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम. स्ट्रेस लेवल नहीं होना चाहिए ना बॉडी में ना आपके मेंटल एबिलिटी में, राइट? ओके, बट अगर आपको है, दैट मीन्स यू आर इन डेंजर बॉस, यू आर रियली इन डेंजर. सो यू हैव टू improve this. How will you able to improve this? So I have given you the lot of examples. So I have given you a lot of examples that if you get a corona, your या फिर कोई भी virus, this is not about a corona, this is not about a corona, this is about any disease. एनी डिसीज, चाहे कोरोना की बात नहीं है, चाहे आपको मलेरिया भी हो गया, आजकल तो और कोई डिसीज हो ही नहीं रही है, केवल कोरोना ही हो रहा है सबको. तो इट इज नॉट लाइक दिस. अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, एनी प्रॉब्लम, तब भी एक ही है आंसर आपके पास, एक ही ब्रह्मास्त्र है आपके पास. मैं आपको आंसर बताती हूँ. तो कोरोना इज अ कैटेगरी ऑफ अ वायरस, ये आपको पता चल चुका है. नेक्स्ट इज, you should not only fear from the COVID-19, you also have to fear about any type of virus. जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं, आपके हेल्थ इश्यूज, चाहे मेंटली हो चाहे फिजिकली हो, कोई भी प्रॉब्लम है, सबसे आपको बचना है, सबसे आपको अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना है, अपनी बॉडी के सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करना है. हाउ वुड यू ओवरकम फ्रॉम इट? क्या लगता है आपको, कैसे आप इसको ओवरकम कर सकते हैं? आई विल गिव यू द आंसर, राइट? Keep watching, I will definitely give you the example. Okay, how you boost your immunity system, कैसे आप अपनी immunity system को, जो कि आपकी बॉडी के लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, how will you able to boost it, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? बता दो, इसका आंसर जल्दी आपको मिलेगा. there are 3 ways. So there are 3 ways, आप सबको जरूर इनके बारे में पता होगा. Again, the question is, पता हमें सबको है बट करता कोई नहीं. Yeah, this is the example. These are the 3 ways. Number 1 is safety. Yeah, safety is very very important. Precautions are very important, more than a treatment से बचना है तो आपको सेफ्टी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट. और आजकल तो सबको समझ में आ चुका है कि हाथ धोना बहुत जरूरी है, मास्क पहनना बहुत जरूरी है. इस चीज को, ये केवल रिलेशन कोरोना का नहीं है, ये रिलेशन सबके साथ है. बिल्कुल सही है पीयूष. अगर आप कुछ खा भी रहे हैं तो पहले देख लीजिए कि क्या वो अच्छे एक जो अच्छा एरिया है उधर से आपने लिया हुआ है, या फिर एक जो भी एक लोकल से एरिया उधर से आपने ले लिया, कोई भी वेजिटेबल्स, कोई भी खाने की चीजें. तो दिस इज नॉट अ हेल्दी हैबिट्स. यू हैव टू बी हेल्दी, यू हैव टू बी सेफ. कोरोना, अच्छा जस्ट इमेजिन अब्दुल, अगर कोरोना, और आई होप कि कोरोना जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, कोरोना खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या? मास्क पहनना बंद, हाथ धोना बंद, सब बंद हो जाएगा क्या? नो, वी हैव टू कंटिन्यू दिस. और कोरोना का अगर डिसएडवांटेज हुआ है तो ये मान लीजिए कि क्या कोरोना का एडवांटेज भी बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ है. लोगों को, स्पेशली इंडियन को ये बता दिया कि आपको अपनी बॉडी को सेफ रखना बहुत जरूरी है, आपको अपनी बॉडी को क्लीन रखना बहुत जरूरी है, लोगों के साथ डिस्टेंस रखना बहुत जरूरी है. ये तो सिखाई दिया इस कोरोना ने. तो ये भी अच्छी बातें हैं जिसकी वजह से कोरोना को हम लोग अप्रिशिएट भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ज्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं. यस, द नेक्स्ट एग्जांपल इज हेल्दी डाइट. या, हेल्दी डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा खाइए, अगर अच्छा खाओगे तो ही आप अच्छी हेल्दी लाइफ जी पाएंगे. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट. Now next is physical exercise, जिसके ऊपर आज हमारा पूरा का पूरा वेबिनार है. This webinar is all about physical exercises, sports, physical activity. So
3 तरीके हैं जिससे आप अपना इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ा सकते हैं, अपनी बॉडी के जितने भी आपके फंक्शंस है उसको इंप्रूव कर सकते हैं. नंबर 1 इज सेफ्टी, बी सेफ. Number 2 is healthy diet. You have to eat a healthy diet to be a good personality, to be to have a good immunity system. Next is physical exercise. Okay, you have to do regularly physical exercises. Okay, now physical exercise करने से एक्चुअल में क्या होगा? आप लोगों ने काफी लोगों को देखा होगा ये बोलते हुए कि फिजिकल एक्सरसाइज करने से ये होता है, फिजिकल एक्सरसाइज करने से ये होता है. सबको पता है, आप मुझे पता है कि जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं इस वेबिनार को, सबको पता है कि फिजिकल एक्सरसाइज करने से क्या होता है. मैं आपको कुछ प्रूफ दूंगी कि ये प्रूफ है. ये प्रूफ से आपको पक्का क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली फिजिकल एक्सरसाइज से आपकी बॉडी में ये होता है. बिल्कुल सही है साजद. ओके, हाउ फिजिकल एक्सरसाइज इंप्रूव योर बॉडी. एग्जैक्टली आपकी बॉडी में क्या होता है? एक्सरसाइज करने से आपकी लंग कैपेसिटी 5 to 15% बढ़ जाती है. जस्ट इमेजिन योर लंग कैपेसिटी इज इंक्रीजिंग विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, एंड दैट फिजिकल एक्सरसाइज इज एरोबिक वर्कआउट्स. फिजिकल एक्सरसाइजेज आर ऑफ 2 टाइप्स. नंबर 1 इज एरोबिक एंड नंबर 2 इज एनारोबिक. ओके, तो अगर मैं आपको सिंपली ये चीज बताऊं तो जो एरोबिक एक्टिविटी होती है, aerobic activity is important for endurance activity. endurance का मतलब जिसमें आप एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक आपकी एक्टिविटी कंटिन्यू रहती है, लॉन्ग ड्यूरेशन वाली एक्टिविटी, एंड्योरेंस, दैट मींस एरोबिक. दूसरी होती है एनारोबिक. एनारोबिक का मतलब हो गया हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज, जिसमें आप स्पीड की एक्टिविटीज लेते हैं, जिसमें आपकी इंटेंसिटी, आपकी पावर एक्टिविटीज, ओके, आपके एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एक्टिविटीज. तो these are the examples. एक एरोबिक एक्टिविटी होती है और एक एनारोबिक एक्टिविटी होती है. अगर आपकी हार्ट कैपेसिटी, अगर आपकी लंग कैपेसिटी को आपको इंप्रूव करना है तो यू हैव टू डू एरोबिक एक्टिविटी. आपको अपनी एरोबिक एक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा. तो एरोबिक एक्टिविटी करने से आपकी लंग कैपेसिटी 5 to 15% बढ़ जाएगी. डेफिनेटली दिस इज द प्रूफ. दिस इज द प्रूफ. और अगर आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ गई, जस्ट इमेजिन आपकी टोटल लंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी. इसका मतलब योर ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ जाएगी. अच्छा, एक चीज बताइए, जब छोटा सा बच्चा होता है, एक एग्जांपल बताते हैं. छोटा सा बच्चा है, छोटे से बच्चे को आप, जब वो बच्चा होता है, आप लोगों ने देखा होगा एट द टाइम ऑफ द बर्थ उसकी ब्रेथिंग रेट कितनी हाई होती है. देखा है कभी एग्जांपल देखा होगा, उसकी ब्रेथिंग रेट कितनी हाई होती है. बहुत जल्दी उसकी ब्रेथिंग रेट, बहुत जल्दी वो ब्रेथिंग रेट लेता है. ओके, जैसे जैसे एज बढ़ती है, आपकी ब्रेथिंग रेट कम होना शुरू हो जाती है. ऐसा ही होता है. यस, ब्रेथिंग रेट कम होना शुरू हो जाती है. सही है. ओके, उसके बाद दूसरा एग्जांपल, एक हेल्दी इंसान है, हेल्दी, आप में से जितने भी लोग, आई होप आप सभी लोग हेल्दी हो. आप जो हेल्दी लोग हैं, आप लोग अपना ब्रेथिंग रेट देखिएगा, इट्स नॉर्मल. ब्रेथिंग रेट आपका एक नॉर्मल है. और एक जो अनहेल्दी है, जिसे कोई ना कोई प्रॉब्लम है, चाहे उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे उसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, लंग की प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका ब्रेथिंग रेट देखना हमेशा फास्ट होगा. उसका ब्रेथिंग रेट हमेशा फास्ट होगा. पल्स रेट उसका फास्ट होगा. क्या रीजन है इसके पीछे? दैट मींस योर ब्रेथिंग रेट हैज अ डायरेक्ट कनेक्शन विद योर फिजिकल फिटनेस. जिसका भी फिजिकल फिटनेस अच्छा होगा, उसका ब्रेथिंग रेट, बिल्कुल सही है, उसका ब्रेथिंग रेट हमेशा कम होगा. बिल्कुल सही है, ब्रेथिंग रेट हमेशा कम होना चाहिए. तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल. ब्रेथिंग रेट कम होगा, ऑक्सीजन अच्छे से ट्रांसफ्यूजन हो पा रहा है, ऑक्सीजन अच्छे से चेंज हो पा रहा है, एक्सचेंज हो पा रहा है. अब इसकी वजह से लंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो एल्वियोलाई बढ़ जाएगी. याद है एल्वियोलाई, हम लोगों ने पढ़ा था अभी. एल्वियोलाई बढ़ जाएगी. जब एल्वियोलाई बढ़ जाएगी तो अगर आपको कोरोना थोड़ा सा भी होता भी है, अगर अफेक्ट प्रोड्यूस, okay, I'm not ignoring the comments, Vivek Deshmukh. I'm not ignoring the comments, I'm just reading the comments. But हाँ, ये बात है कि मुझे आपके comments, जितने भी comments हैं, I'm watching the comments, but I have to keep continue with my webinar. Otherwise, this webinar will not complete on the time. Okay, so these are the reasons. But I really appreciate those who are continuously commenting on the webinar. This is a really great effort. Thanks for this. Yeah. Yes, Ashish. Okay. So the thing is that number of alveoli, आपकी जो lungs है उसके alveoli increase हो रहे हैं, capillaries increase
हो रही हैं, जिसका मतलब है अगर कोरोना हुआ भी, अफेक्ट हुआ भी, तो आपको कंप्लीट अफेक्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज योर लंग्स आर having a great efficiency of doing that work, right? Okay, next is it also improves your cardiovascular. How? By increasing the stroke volume, by increasing the cardiac output. इसका मतलब एक बार में जो blood आपका हार्ट पंप्ड आउट करता है, एक बार में जो भी आपका हार्ट ब्लड को पंप्ड आउट करता है, वो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी. जब आपकी बॉडी में ब्लड हाई अमाउंट में प्लम्ड आउट होगा, तो सीधी सी बात है आपकी बॉडी के अंदर काफी अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो कर रहा है, काफी अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो कर रहा है. इसका मतलब क्या हुआ? ब्लड बढ़ रहा है. ब्लड बढ़ेगा, इसका मतलब ब्लड के जो ब्लड के ब्लड सेल्स, RBC, WBC, platelets, these are increasing, right? If these are increasing, that means your blood increasing, and cholesterol level is also increasing. That is high density cholesterol is also improving, and which also improves the blood pressure. क्योंकि अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि अगर आपका ब्लड, आपके ब्लड के वेसल्स में रुकना शुरू हो गया, क्लॉट होना शुरू हो गया, तो क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाएगा, जो आपकी क्या बोलते हैं, आपकी हेल्थ स्टेटस को, फिजिकल एबिलिटी को रिड्यूस करेगा, पक्का रिड्यूस करेगा. इसको इंप्रूव करने के लिए अगर आपने एक्सरसाइज करी, दैट मीन्स योर एफिशिएंसी ऑफ योर ब्लड फ्लो इज इंक्रीजिंग, राइट? Bhakti cardiovascular means the study of your heart and the blood vessels. These are the relation for the cardiovascular system, right? Okay, these changes in turn help lower death rates. अब ये सारी चीजें आपकी बॉडी में इंप्रूव होंगी, तो सीधी सी बात है, your kidney is depends upon your heart and your lungs. If your lungs and your heart is working in a proper way, that means your kidney is also working in a proper way, which will means that your death rates will be lower from the illness, right? So such a cardiovascular diseases, that means आपका heart attack, stroke, type 2 diabetes, कोई काफी सारे cancers होते हैं, breast cancer, lung cancer, and the osteoporosis, osteoarthritis. These are the many diseases which will affect if you continuously with your unhealthy habits, if you're continuously with your unhealthy lifestyle. If you want to improve from all this, you have to do physical exercise, because आज मैंने आपको इतना क्लियरली बता दिया कि फिजिकल एक्सरसाइज करने से आपके लंग्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, फिजिकल एक्सरसाइज करने से आपके हार्ट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, साइकोलॉजिकली क्या इफेक्ट होता है. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. साइकोलॉजिकली किस तरीके से इफेक्ट करेगा? एंजाइटी लेवल, हड़बड़ाहट. कितने लोग हैं जो काम से पहले हड़बड़ा जाते हैं? मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ. एक टाइम था पीयूष, कोई भी वेबिनार होने से पहले या फिर एज अ स्पीकर, आज एक टाइम ऐसा है दैट आई एम इनवाइटेड एज अ स्पीकर. दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू मी. बट एक टाइम था कि बोलने से पहले आई यूज्ड टू हैव एन एंजाइटी. कितने ही लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी बड़ा काम करने से पहले उनको एंजाइटी फील होती है, हड़बड़ाहट फील होती है. बिल्कुल सजग बहुत लोग होते हैं. आई वॉज ऑल्सो इंक्लूडिंग इन वन ऑफ देम, बट आज ऐसा नहीं है. maybe my confidence level has increased up, या फिर I really really want to give all the credit to my profession, that physical education. I really belong to physical education, and मैं अपने आप को एज अ फिजिकल एजुकेशनिस्ट बोलती हूँ, एंड आई रियली हैव अ बोल सकते काफी मुझे प्रेज है इस चीज को लेकर, दैट आई बिलोंग फ्रॉम दिस प्रोफेशन, बिकॉज इस प्रोफेशन ने मुझे अपनी एंजाइटी को ओवरकम करना बताया, डिप्रेशन को कम करना बताया, और मेरे कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करना बताया. Because of this profession, because of the physical exercise, I am the live example of in front of you. Seriously, in spite of having I'm having the speaking problem, but little bit problem. In spite of this, I am speaking in front of you. तो ये क्या रीजन है? These are the live examples. मैं किसी और एक great personality का example आपको नहीं बता रही हूँ, अपना खुद का example आपको बता रही हूँ. तो just
because of the psychology. This is all nothing. This is just a psychology. If you are feeling unhealthy, if you are feeling in a depression, if you are feeling in a negative mood, आज mood नहीं है, छोड़ो. So these are all the psychological reason, nothing else. ये आपका improve होता है. Self actualization. Self actualization, that means whatever you feel about yourself, आप अपने बारे में कैसा feel कर रहे हो, this will improve. Definitely this will improve. Okay. Exercise also have alleviated symptoms like low self-esteem and social withdrawal. If you are having a problem, social recognition की problem है, आपको society में आना पसंद नहीं है, इंट्रोवर्ट है, काफी इंट्रोवर्ट है, लोगों से मिलना बात करना पता नहीं है कि कैसे बात करेंगे, पता नहीं है लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, ये सब साइकोलॉजी है, नथिंग एल्स. इसका एक ही रीजन है that you are not having a confidence in yourself, that how you will behave, and जो भी आप behave करेंगे क्या वो सही होगा या फिर गलत होगा. That means you are struggling with your psychological problems, and psychological problems could be definitely increased by exercise. और एग्जांपल्स एक बहुत ये भी एक थोड़े से एजुकेशन की बात हो गई. न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं आपके ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं. देयर आर 3 मेन न्यूरोट्रांसमीटर्स आर देयर. Number 1 is serotonin, number 2 is dopamine is also called a norepinephrine. So these are the 2 neurotransmitters. These are the responsible, yes, these are the reasons, Sajid. My whole webinar is upon the physical exercise only. So this is the answer. Physical exercise are the answers. और reasons भी मैं आपको बता रही हूँ. मैं आपको केवल ये नहीं बता रही हूँ कि करो करो करो. No, क्यों करो, क्या रीजन है वो भी मैं आपको बता रही हूँ. फिजिकल एक्सरसाइज करने से आपके ब्रेन में ना 2 न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं. द नेम इज सीरोटोनिन एंड डोपामाइन. ये जब रिलीज होते हैं तो आपको अच्छा फील होता है. दिस इज द बेस्ट एग्जांपल. कितने ही लोग हैं आप लोग मॉर्निंग में ना एक गेम खेलिए. कम ऑन, आप एक काम करिएगा, अपने साथ एक्सपेरिमेंट करके देखो एक हफ्ता. अब एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि आपका मूड फ्रेश होना शुरू हो गया है, आप अच्छा फील करना शुरू हो गए, आप जिंदगी को अच्छा देखना शुरू हो गए, आपका एक व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो चुका है जिंदगी को लेकर, बिकॉज ऑफ दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स. एक बहुत बड़ा एक ट्रुथ है, भगवान ने ना हमारी बॉडी में सब कुछ दिया है, हमें यूज करना ही नहीं आता. जस्ट इमेजिन वी आर हैविंग दिस न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो कि एक मैजिक है. न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होकर हमें अच्छा फील होना शुरू होता है. आइसक्रीम खाकर अच्छा फील शुरू नहीं होगा, मूवी देखकर अच्छा फील नहीं होगा, क्लब में जाकर अच्छा फील नहीं होगा, क्योंकि वहां पर डिप्रेशन ज्यादा होगा. ये डोपामाइन और न्यूरोट्रांसमीटर्स वहां पे रिलीज नहीं होंगे. वहां पे क्या रिलीज होगा, वहां पर और प्रेशर ही रिलीज होगा और कुछ रिलीज नहीं होगा. तो दीज आर द रीजंस. बाय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज यू विल फील हैप्पी. हार्मोनल फंक्शंस का आपको पता है कि आपकी बॉडी के ऊपर कितना बड़ा रोल होता है. हार्मोनल फंक्शंस विल आल्सो इंक्रीज. यस कुबर, हेलो. गुड फिजिक, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हो जाएगी. फिजिकल एक्सरसाइज करने से आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हो जाएगी, तो सीधी सी बात है कॉन्फिडेंस लेवल पक्का दिखेगा. अच्छा एक चीज बताइए, जिस दिन आपने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी होती है, बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है और आपको पता है कि लोगों से आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है, उस दिन आपका कॉन्फिडेंस कैसा हो जाता है. एक पार्टी में आप गए हैं और आपने देखा वाओ मेरी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, और 3-4 लोगों ने आपको आगे के कमेंट भी किया कि वाओ लाइक आपकी ड्रेस तो बहुत अच्छी है, वाओ. तो क्या हो जाता है, मतलब एकदम कॉलर हाई हो जाता है, पूरा एकदम एटीट्यूड ही चेंज होता है, पूरा कॉन्फिडेंस ही चेंज हो जाता है, पूरा एकदम हाई लेवल का कॉन्फिडेंस होता है. ऐसा होता है कि नहीं होता, बताओ. मेंटली योर साइकोलॉजी प्लेजर फील होता है, साइकोलॉजी चेंज within few minutes. Psychology changed. How? Because of the confidence, because of the social recognition. लोग आपको पहचान रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं. जस्ट इमेजिन कि अगर ये कुछ वक्त के लिए नहीं, जस्ट इमेजिन ये कुछ वक्त के लिए नहीं, पूरी जिंदगी के लिए चेंज हो जाए, पूरी जिंदगी के लिए चेंज हो जाए, तो क्या लगेगा, मजा ही आ जाएगा, जिंदगी जीने का मजा आ जाएगा. ओके, तो जिंदगी जीने का मजा अगर चाहिए तो यू हैव टू बी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस. You definitely have recognition, social recognition, because and for this you should have a good physique. And आपको पता है कि good physique होने के लिए क्या जरूरी है,
एक्सरसाइज जरूरी है. So let me conclude it again that why don't we follow what we like about physical exercise. मतलब अब ये बात दोबारा से घूम फिर के वहीं आ गई जहां से मैंने शुरू किया था. इतना सब मैंने आपको बता दिया, सारे एग्जांपल्स दे दिया. मैं अब आपको 2-3 एग्जांपल और दे दूं ना, तब भी आप मोटिवेटेड फील करेंगे, इंस्पायरिंग फील करेंगे, बट केवल अभी के लिए 1 घंटा 2 घंटा. मम्मी कुछ बना रही है, आज तो वैसे भी ऑफ है, आज मम्मी कुछ बना रही है, मस्त खा लेंगे पेट भर के, और पेट भर के खाने के बाद सो जाएंगे, खत्म. वो जो जो वेबिनार में सुना, जो आज सीखा, सब खत्म. So again, the reason is why don't we follow what we like about physical exercise? So let me give you an answer. So the bitter truth is we love our comfortable zone. हमें अपना आराम बहुत पसंद है. हमें अपना आराम इतना पसंद है कि मतलब हम इसको आराम को छोड़ना ही नहीं चाहते. हमें पता है कि ये आराम हमें नुकसान कर रहा है, हमें पता है कि ये इसकी वजह से हमारी जिंदगी खराब हो रही है, बट फिर भी we are continuously with that because we love our comfortable zone. Second point is we love easy going things. चलने दो यार, जो चीज देख लेंगे, कर लेंगे, चलने दो, जो चल रहा है चलने दो. ये जो चलने दो वाला जो एटीट्यूड है ना, this attitude will definitely decreasing your ability towards physical activity. These are the reasons. Third reason is we love technology. This is the bitter truth that we all love technology. आजकल क्या, अगर मैं ऐसी बात करूंगी तो आप लोग बोलेंगे मैम आप किस उसके आए हो, कहाँ से आए हो, आप एलियन तो नहीं हो क्या. बट डेफिनेटली अगर मैं आपको बताऊं तो आई लव कि अगर मेरे पास कार ना होकर एक बाइसाइकिल हो जाए तो आई विल प्रेफर दैट. बट मुझे पता है लोग बोलेंगे, मतलब एक प्रोफेसर होकर आप बाइसाइकिल ले रहे हो, हैव अ कार लो और चलाओ, मस्त चलाओ. बट मुझे क्या पसंद है, बिकॉज एज अ फिजिकल एजुकेशनिस्ट, एज अ फिजिकल लाइक स्पोर्ट्स लवर, मुझे पता है कि मेरे लिए कार बेटर नहीं है, मुझे पता है मेरे लिए साइकिल बेटर है, बट हम फॉलो नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ द सोसाइटी क्या कहेगी. टेक्नोलॉजी से आज हमें इतना प्यार हो चुका है कि रिमोट, सबके पास रिमोट है, पंखा ऑन करना है, रिमोट चला दो, पंखा ऑन हो गया. मतलब वहां तक जाने का भी जरूरत ही नहीं है. आजकल सब कुछ ऑटोमेटिक हो चुका है. बस एलेक्सा का तो एग्जांपल मैं भूल ही गई. कुछ भी अगर आजकल बटन दबाने का भी जरूरत नहीं है, बस बोल दो और वो चीजें हो जाती हैं. These are the examples of what? These are the examples of the technology that we are starting loving technology more than anything. अगर हमारी क्लास में स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो वेबिनार है ये बेसिकली इंडो पब्लिक स्कूल के लिए है, एंड उसमें काफी सारे स्टूडेंट्स जो ग्रोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं बताना चाहूंगी कि कितने ही स्टूडेंट्स होंगे जो आज के टाइम पे इंजीनियर बनना प्रेफर करेंगे, एक डॉक्टर बनना प्रेफर करेंगे. आई वांट टू बी, अगर मैं जब स्कूल में थी तो मैं भी यही बोलती थी, आई वांट टू बिकम अ पायलट, आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर. हमारी चेंज होते रहते हैं चीजें, ओके. बट आज मैं कुछ और बन चुकी हूँ, आज मैं कुछ और बन चुकी हूँ. तो मैं एक चीज बताऊंगी दैट एज अ फिजिकल एजुकेशनिस्ट we always oppose the engineers, we always oppose the doctors. You know why? आप लोग बोलेंगे मैम आप क्या बोल रही हैं, but really as a physical educationist मैं तो यही बोलूंगी कि we really don't like technology, because टेक्नोलॉजी से हम क्या हो रहे हैं, हम आलसी होते जा रहे हैं, हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते. हर चीजें हमारे रिमोट में आ चुकी हैं, हर चीजें हमारे एक बटन दबाकर चीजें हो जाती हैं. ये हमारे लिए हमारे कंफर्टेबल जोन को बढ़ा रही है, हमारे इजीनेस को बढ़ा रही है, बट फिजिकल एक्टिविटीज को कम कर रही है, जिसका लाइव एग्जांपल है आज का यूथ. आज का पूरा यूथ क्या कर रहा है, पबजी खेल रहा है. आज का पूरा यूथ पबजी खेल रहा है. आजकल का पूरा यूथ टिकटॉक पे, थैंक गॉड टिकटॉक बंद हो गया. आज का पूरा यूथ टिकटॉक पे घूम रहा है. क्या चल रहा है, दुनिया कहां से कहां जा रही है. दिस 3 months, अगर मैं आपसे पूछूं 3 महीने आपने क्या किया, 3 महीने मेरे पास जितने भी कॉन्टेक्ट में उनका स्टेटस देखती हूँ, मोस्टली का स्टेटस यही होता है, हम तो बस सो रहे हैं, हम तो बस खा रहे हैं, हम तो बस मतलब इधर उधर ये सब कंटिन्यू चल रहा है. ये 3 months आप कितना कुछ कर सकते थे, बट कोई बात नहीं, अभी भी वक्त है. तो दीज आर द बिटर ट्रूथ दैट विच आर जो आपको अपने एम तक पहुंचने में रोकते हैं. ओके, नाउ थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर इन स्पोर्ट्स. अब मैंने आपको बोला कि भाई
इंजीनियर बनोगे, भाई इंजीनियर का काम अच्छा है, आई एम नॉट अपोजिंग द वर्क ऑफ इंजीनियर्स, आई एम जस्ट सेइंग दैट टेक्नोलॉजी है, ऑप्शन है आपके पास, अब ये आपका ऑप्शन है दैट यू आर यूजिंग इट और नॉट। आर यू गेटिंग दिस? कोई भी चीज इन्वेंट होती है वो सीधी सी बात है आपकी अच्छाई के लिए ही इन्वेंट हो रही है, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग टेक्नोलॉजी का ओवर यूज कर रहे हैं। डोंट ओवर यूज दैट जो भी चीजें इन्वेंट होती है उसे यूज करिए। दीज आर जस्ट इन्वेंट टू बी यूज, ओवर यूज करने के लिए इन्वेंट नहीं हुई है। तो अगर आप फ्यूचर सोच रहे हैं स्पोर्ट्स के बारे में, तो इट्स बेटर, इट्स अ गुड फ्यूचर, और बहुत अच्छा एक फ्यूचर है। मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ इसके बारे में। एक अपना ही एक एजुकेशन है दैट इज कॉल्ड नेम कॉल्ड फिजिकल एजुकेशन। ओके, अभी अगर मैं आपको बताऊं, आपका फ्यूचर आप स्पोर्ट्स में देखते हैं दैट आई वांट टू बिकम एन ओलंपियन, आई वांट टू बिकम अ गुड एथलीट इन स्पोर्ट्स, आई वांट टू बिकम अ क्रिकेटर, अ फुटबॉलर। तो बीए या फिर बीएससी या फिर बीकॉम की कोई नीड नहीं है। डू फिजिकल एजुकेशन, बिकॉज दिस एजुकेशन प्रोवाइड्स यू एन एजुकेशन टुवर्ड्स स्पोर्ट्स। दिस इज द ग्रेट एजुकेशन। अगर आप अपना फ्यूचर स्पोर्ट्स में सोचते हैं तो लाइक दिस इज अ मिसकंसेप्शन, बिल्कुल सही है। अगर आपको फ्यूचर स्पोर्ट्स में देखना चाहते हैं तो दिस इज द ऑप्शन टू यू। तो आपको बीकॉम बीए की कोई नीड नहीं है, आप ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं, द फिजिकल एजुकेशन प्रोफेशन, राइट? ओके, बट इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि ये जो प्रोफेशन है वो सबके लिए नहीं है। आई एम टेलिंग यू, दिस प्रोफेशन इज नॉट फॉर ऑल। इफ यू आर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग विल पावर, अगर आपकी विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ही ये प्रोफेशन आपके लिए है। अगर आपका कंक्रीट डिटर्मिनेशन है, यू इफ यू आर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन इन यू दैट आई रियली वांट टू अचीव इट, आई रियली वांट टू डू, बिकॉज फिजिकल एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में आपको कंटिन्यूअसली फिजिकल एक्सरसाइज करनी पड़ती है और एक पर्पस को फुलफिल करना पड़ता है। तो कंक्रीट डिटर्मिनेशन इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दे हैव टू रिस्क देयर लाइफ। दिस इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल। इस रीजन की वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि काफी सारे स्टूडेंट्स इस प्रोफेशन में नहीं आना चाहते, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज आई हैव ऑल्सो फेस दिस रिस्क इन माई लाइफ। जब मुझे समझ में आया, क्योंकि मैं भी जब इस प्रोफेशन में आई थी तो एज अ ओलंपियन बनने के लिए आई थी। सीरियसली, दिस इज द ट्रुथ। बाकी जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो पक्का मुझ पे हंसेंगे आज कि बनने कुछ और आई थी और बन कुछ और गई। लगा इट रियली हैपेंस, इट रियली हैपेंस इन योर लाइफ दैट आप लाइफ में कुछ और पर्पस के लिए आते हैं लेकिन हो कुछ और जाता है। बट whoever I am, I'm really happy in that. But yes, रिस्क इस प्रोफेशन में है। किस चीज का प्रोफेशन का रिस्क है मैं आपको बताती हूँ। जस्ट इमेजिन एक स्पोर्ट्स, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ। एक एथलीट जो ओलंपिक्स, आपको पता है ओलंपिक्स कितने इयर्स का होता है? ओलंपिक्स इज ऑफ 4 इयर्स, 4 साल का ओलंपिक्स होता है। 4 लाइक ओलंपिक्स का ड्यूरेशन होता है या 4 इयर्स, जानता हूं उनके बाद ओलंपिक्स होता है, ठीक है? तो जो एथलीट होते हैं उनकी प्रिपरेशन कंटिन्यूअसली 4 साल तक चलती रहती है। जस्ट इमेजिन 4 इयर्स ऑफ द लाइफ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर वन कॉम्पिटिशन, 4 इयर्स। ओके, एक बार क्या हुआ, जस्ट एग्जांपल है, आप लोगों में से काफी लोगों ने उसको देखा भी होगा। जिम्नास्टिक, ओके, जिम्नास्टिक में उन्होंने हैंडस्टैंड किया। हैंडस्टैंड करने के बाद जैसे फ्लिप मारा, उनका जो नी था, नी ब्रेक हो गया, फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर वो भी एक तरफ से नहीं, 2 तरफ से फ्रैक्चर हुआ ऑन द सेम टाइम। पैरालाइज्ड, पैरालाइज्ड हो गया। जस्ट इमेजिन, लाइक जिसने इतना पूरा जिंदगी मेहनत किया, एक प्रॉब्लम से प्रॉब्लम हो गया वहां पे। और तो मतलब आपको समझ में आ रहा है ये एग्जांपल, दीज आर द मेनी एग्जांपल्स। मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी एथलेटिक्स में थ्रोअर्स होते हैं उनको एक छोटी सी इंजरी हो जाती है, वो है आपको एल्बो की इंजरी हो जाती है वहां पे। आई एम ऑल्सो एथलेटिक्स, आई एम ऑल्सो बिलोंग टू एथलेटिक्स एंड आई एम ऑल्सो अ थ्रोअर। तो मुझे भी पता है एक एल्बो की इंजरी हो जाती है। दैट मींस इंजरीज आर ऑलवेज देयर। इफ यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन देन इंजरीज इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। लाइफ तो रिस्क में रहती है, बट एक तरफ अगर रिस्क की लाइफ है, just imagine the life of an army person, just imagine the life of a defense person, just imagine those who are struggling every day, अपने प्रोफेशन के लिए स्ट्रगल करते हैं। तो these are not about the risk, these about the love of whatever you do. Okay, so this is just the examples. Otherwise, अगर आपको सच में स्पोर्ट्स से प्यार है,
अगर आप सच में अपना फ्यूचर स्पोर्ट्स में देखना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल, दिस इज द बेस्ट education, physical education. If you really determinant, if you're really having a strong power, तो अपना इंटरेस्ट बदलने की कोई नीड नहीं है, अपना हॉबीज को बदलने की कोई नीड नहीं है, उसी हॉबीज के साथ आगे बढ़ो ना, बहुत अच्छा फ्यूचर है। फ्यूचर में आपको बताता हूँ क्या क्या ऑप्शन है आपके पास। अच्छा, एक और रीजन हमारा छूट गया, डोंट लव कंफर्टेबल जोन। ओके, ऐसे लोग जिनको अपना कंफर्टेबल जोन पसंद नहीं है, मतलब दे आर ओके, अगर उनसे कोई उनका कंफर्टेबल जोन छीन ले तो दे आर रियली ओके, उन लोगों के लिए है ये प्रोफेशन। ओके, पॉइंट्स विच अपोजिट स्टूडेंट्स टू गेट इनटू दिस फील्ड। काफी स्टूडेंट्स इस फील्ड में नहीं आना चाहते, उनको लगता है फिजिकल एजुकेशन फील्ड हैज नो मनी। ये बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है, दीज ऑल आर द मिसकंसेप्शंस, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस फील्ड में इतना पैसा है ना कि अभी मैं आपको यहाँ तो नहीं बताऊंगी, अदरवाइज आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स है आज के टाइम पे स्पोर्ट्स कहां से कहां पहुंच चुका है, जस्ट बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस, जस्ट बिकॉज ऑफ द मनी। तो मनी इसमें बहुत है, अगर आपको लगता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इट हैज नो फ्यूचर, नो, दिस इज नॉट अ ट्रू, इट हैज अ ग्रेट फ्यूचर इन दिस प्रोफेशन। मैं आपको एग्जांपल अभी बताऊंगी। पीपल थिंक्स दैट इट स्पॉइल्स बेसिक एजुकेशन एंड फ्यूचर ऑफ द स्कूल स्टूडेंट्स। बहुत टीचर्स को ऐसा लगता है, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अगर बच्चों को स्पोर्ट्स करने दिया तो बाकी एजुकेशन जो है वो हमारी बेकार हो जाएगी। काफी लोगों को लगता है, काफी पेरेंट्स को भी ऐसा लगता है कि नहीं नहीं होमवर्क करो, नहीं नहीं पढ़ाई करो, बाहर की नहीं करना, ये केवल पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। केवल पढ़ाई करने से क्या होगा, केवल मेंटल प्रेशर बढ़ेगा, केवल मेंटल एबिलिटी बढ़ेगी। अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया कि अगर आपको हेल्दी बनना है तो हेल्दी बनने के लिए योर फिजिकल फिटनेस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड योर मेंटल एबिलिटी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ाई करने से, एजुकेशन करने से आप अपनी मेंटल एबिलिटी को तो इंक्रीज हो रही है, बट व्हाट अबाउट फिजिकल एक्टिविटी, व्हाट अबाउट योर फिजिकल स्ट्रेंथ, कुछ नहीं हो रहा है। So physical activity is also very important. This is also a part of education. This is not an this is not a way. This is a part. This is not a part. This is a part of the education, right? Physical educationists are useless, abusers, don't know anything and do nothing. No, this is not a true way. This is not a true way. Physical educationists useless नहीं है, abusers नहीं है। ये बहुत ही गलत पर्सनैलिटीज बना रखी है स्पोर्ट्स प्लेयर्स के बारे में या फिर स्पोर्ट्स कोचेस के बारे में। नो, दिस इज नॉट अ राइट थिंग और ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए। ओके, फिजिकल एक्टिविटी गेट इंजरीज। अब भाई ठीक है, अगर हम लोग कुछ नया सीखेंगे तो इंजरीज तो होंगी ना, तो क्या हो गया, तो इसमें डरना नहीं चाहिए। दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोफेशन। नेक्स्ट इज वेस्ट ऑफ टाइम। नो, दिस इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम, this is a worth of time, this profession. Okay, no marriage for physical educated girls. This is the biggest problem of Indian women, जिसकी वजह से इंडियन वुमेन्स आज के टाइम पे स्पोर्ट्स में नहीं आ पाती हैं, बिकॉज उनको लगता है कि मैरिजेस ही नहीं होती हैं, अगर मैं स्पोर्ट्स में गई तो मैरिज नहीं होगी। दिस इज नॉट अ ट्रू वे। आज के टाइम पे इंडियन क्रिकेट टीम, जस्ट इमेजिन कहां से कहां पहुंच चुकी है। इंडियन हॉकी टीम रिकॉग्निशन कितना बढ़ चुका है, लोग उन्हें पहचानते हैं, लोग उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। तो आजकल चीजें अवेयरनेस में बदल रही है, चीजें अप्रिसिएशन में बदल रही हैं। We go where majority goes. This is the biggest problem of youth. This is the biggest problem of youth कि आज के टाइम पर हम वहां जाते हैं जहां बाकी स्टूडेंट्स जा रहे हैं। अच्छा, मेरा दोस्त क्या कर रहा है, इंजीनियर बनना है, चलो मैं भी इंजीनियर बनता हूँ। अच्छा, मेरा दोस्त क्या कर रहा है, डॉक्टर बन रहा है, चलो मैं भी डॉक्टर बनता हूँ। लोग जहां जा रहे हैं वहां क्यों जा रहे हो? व्हाट इज योर हॉबी, व्हाट इज योर एम, व्हाट इज योर इंटरेस्ट, व्हाट इज योर, आपका अपना क्या है? आपका जो भी अपना है, अगर आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत प्यारा फ्यूचर है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है। वी आर द एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे जो इस प्रोफेशन को आगे बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ाते रहेंगे। एंड वी आर गिविंग दिस इंफॉर्मेशन ताकि आपको मिसकंसेप्शन ना हो, आपको ट्रू जो भी इस प्रोफेशन के रिलेटेड जो भी बातें हैं वो सारी क्लियर हो जाए। इंक्रीजिंग मॉडर्नाइजेशन बढ़ रहा है, इसकी वजह से फिजिकल एक्टिविटीज या फिर ये प्रोफेशन थोड़ा सा कम होता जा रहा है, जो कि गलत चीजें हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो अगेन द थिंग इज दैट अगर आपको
लगता है, और अगर मैं आपको इस चीजों को बताने में कामयाब हो पाई हूं, तो अब मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगी दैट इस प्रोफेशन में कितना स्कोप है। केवल एक ही स्कोप नहीं है, ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर, ओनली कोच, यही एग्जाम्पल नहीं है, और भी एग्जाम्पल्स हैं। अ कोच एंड स्पोर्ट्स रेफरी तो है ही है, और इनकी जो इनकम होती है बहुत हाई इनकम होती है, मैं आपको बता दूं। नेक्स्ट इज प्रोफेसर, लाइक आई एम ऑल्सो अ प्रोफेसर, तो दिस इज ऑल्सो अ प्रोफेशन। नेक्स्ट इज फिजियोथेरेपिस्ट। आज मैं बता रही हूँ कि आज के टाइम पे ये प्रोफेशन इतना हाई डिमांड में जा चुका है, इंटरनेशनल लेवल पे इनकी मांग हो चुकी है, इनको मांगते हैं। इफ यू आर अ गुड फिजिकल लाइक फिजियो, दैट मीन्स योर इनकम एंड योर स्कोप इज टू हाई। इन टाइम मतलब अब्रॉड में भी काफी आपकी डिमांड बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज फिटनेस ट्रेनर, जिम इंस्ट्रक्टर, बहुत ही बढ़िया प्रोफेशन है आज के टाइम पर। स्पोर्ट्स मैनेजर्स इज ऑल्सो अ वेरी ग्रेट प्रोफेशन इन टूडेज टाइम। स्पोर्ट्स डायरेक्टर एक बहुत ही हाई प्रोफाइल एक स्कोप है स्पोर्ट्स में। RSO, regional sports officers, district sports officers, these are the great examples of this profession. स्पोर्ट्स टेक्नीशियन, स्पोर्ट्स इंजीनियर। अब आप लोग को दिख रहा होगा कि भाई स्पोर्ट्स का मतलब है, इस प्रोफेशन का मतलब है केवल जो प्लेयर है यही लोग आएंगे। नो, अगर आपको इंजीनियरिंग पसंद है और अगर आपको स्पोर्ट्स पसंद है तो भी आप इस प्रोफेशन में स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग के थ्रू आ सकते हैं। आप लोगों ने उसका देखा होगा, अरे रिबॉक, रिबॉक क्या है, ब्रांड है, वो क्या बनाती है, स्पोर्ट्स वियर्स बनाती है। स्पोर्ट्स वियर्स कौन बनाते हैं, स्पोर्ट्स इंजीनियर्स बनाते हैं। तो स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग इज ऑल्सो अ ग्रेट स्कोप इन दिस प्रोफेशन। स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चरर, जो भी चीजें इसमें यूज होती हैं, इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, ये सब यहाँ पर आप ये सब में भी काफी अच्छा स्कोप है यहाँ पर। स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर, अगर आपको मीडिया में इंटरेस्ट है, अगर आपको स्पीकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आपको ब्रॉडकास्टिंग में इंटरेस्ट है, तो भी आप एक बहुत बढ़िया स्कोप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट, आजकल सबको पतला होना है, सबको पतला होना है, सबको हेल्दी होना है, तो ये प्रोफेशन अपने आप में एक आउटस्टैंडिंग प्रोफेशन है, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स इंजरी रिहैबिलिटेशन एंड ड्रग्स, डोपिंग, स्पोर्ट्स बायोकेमिस्ट्री। मतलब सीधी सी बात है, चाहे अगर आपको मेडिकल में इंटरेस्ट है, चाहे आपको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, चाहे आपको डिफेंस में इंटरेस्ट है, कैसे भी इंटरेस्ट है, तब भी आप इस फील्ड में आ सकते हैं अगर आपको सच में स्पोर्ट्स से प्यार है। तो ये था आज का पूरा वेबिनार। The good message is you have to break your comfortable zone if you really want to physically fit body. So this is a great message. I hope you love the today's webinar. And last में आपको मैं बस एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि on the occasion of National Sports Day, I really appreciate the effort of Indo Public School, and I really appreciate जो भी अपना एक कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए, and who has been a part of the webinar. I really congratulate you because आज आपने एक ऐसी चीज को विटनेस किया है कि I hope this will definitely improve your future, and this will definitely develop something in you. Thank you, and thank you so much. Thank you so much, Meenakshi ma'am. This is a very wonderful session for me and my sports family. Please, Yes. I request to principal ma'am. Please say a few words. Please, Meenakshi ma'am, unmute principal ma'am. Okay, wait. It's a very wonderful session. One second. Yeah, ma'am is unmute. Thank you so much, Meenakshi ma'am. Yes, ma'am. It was so wonderful, so informative, a lot of enthusiasm that was transferred from you to us, and the misconceptions
We all have those misconceptions, and the difference that you told us about health, about fitness, wellness. So we are enriched with all the information that you have rendered. And of course, I like the example of your dad Yeah. about the about the physical fitness and the physical exercise. Yes, So I think I am sort of like him, a lot of physical activity, and then I get exhausted. And like you said, that see, we know that we have to do the physical exercise every day. yeah, And after this particular session with you, I am inspired, and I yeah, hope that I continue it for a long time and it is not short lived. yeah. Generally Thank you it so is much, sir. that, Yeah, it yeah, is, generally that we yeah, do it with enthusiasm, and then after that it goes for a toss, and then you give reasons that you are loaded with work and all those things. yeah. Definitely. Yes, but I hope that we stick to our physical exercise routine every day. Yeah. So we have a lot of takeaways from this session, and thank you so much. Thank you so much. I Thank you, sir. request Shoaib sir to give the formal vote of thanks. Thank you, ma'am. Permission of principal, ma'am. Today we present vote of thanks. Good afternoon, everyone. It is a honor for me to express my gratitude to everyone present here. On behalf of entire Indo Public School, I express my sincere thanks to respected Dr. Ayushri Deshmukh Madam and patron Dr. Ashish Deshmukh sir for providing us such an adorable platform to learn and explore by different ways. Next, I would like to give my humble thanks to our today most inspiring chief guest, Mr. Uday Deshpande sir, for a great motivational guidance. Thank you, sir. Thank you very much, sir, for giving us your quality time. I want to express my heartfelt gratitude to today's admirable speaker for providing us such a beautiful motivational lecture. I would like to present my sincere thanks to respected Principal Ma'am, Principal of Indo Public School, for her proper guidance. Thank you so much, ma'am. Last but not least, I would like to thank our respected Vice Principal, sir, for his humorous support. Thank you, sir. Once again, thank you, my sports family. Thank you very much to all those who really made this webinar successful. Thank you, everyone. Thank you. As Thank you, I ma'am, and Thank thank you, you, ma'am. sir. I drop Yeah, feedback ma'am. form, Thank please you so fill much up to is to compulsory. invite me here. Thank you, Meenakshi ma'am. Yeah, thank you so much. Please all participate. Fill up the feedback form. Feedback form is compulsory, so please form fill up. Yeah, I sent. I dropped my feedback form in message box, chat box. Yeah, already resent feedback form.
Thank you, Meenakshi ma'am. Okay, okay. So It's may a I very disconnect now? wonderful session webinar. Yeah, thank you so much. Thank you so much for inviting. Yeah. So, may I disconnect now, Shoaib? Yeah. Principal ma'am, may I disconnect now? Okay, okay, no problem. Because, Thank you, yeah. Meenakshi ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so Thank much. you. Yeah. Yeah, yeah. Wish to meet you soon. Yeah, definitely, ma'am. Definitely. I Yes. love Amravati as well. I love Amravati. Oh, Yeah. then you're Yeah. most welcome. Yeah, We yeah, yeah. want this COVID-19 to go soon. Yeah, definitely. We will come. Yes, we will Yes. definitely meet. Okay. And Okay. wish you very happy sports National Sports Day to all. Same to you. Same to Yes. you all. Same to you. And a Yeah. good day to everybody. Yeah. Good Thank you day. so much.